चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कोरोना वायरस की सूरत हाल को मलूज रखते हुए जूनियर डॉक्टरों से अपील की कि वो अपनी हड़ताल खत्म करते हुए फौरी ड्यूटी पर रुजू बेकार हो जाएं। मुख्य सेहत के अहदेदारों की तरफ से जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बारे में वाकिफ करवाने पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत उनके वाजिबी मुतालबात पर हमदर्दाना गौर कर रही है। चुनाचे बहरान के ऐसे वक्त ड्यूटी का बाइकाट करना कोई मुनासिब बात नहीं है, इससे आवाम पर भी बुरा असर पड़ेगा। प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वालों में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, कोविड-19 स्पेशल ऑफिसर राजशेखर रेड्डी, सेक्रेटरी हेल्थ सैयद अली मुर्तजा रजवी और दूसरे शामिल थे। అయితే ఇంకొకటి కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇప్పుడే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర మాకు మీటింగ్ కూడా అయ్యింది. ఎస్పెషలీ ఏదైతే జూనియర్ డాక్టర్స్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నారో దాని మీద కొన్ని వాళ్ళ ప్రతిపాదనలు పెట్టారు. ఆల్రెడీ మేము జూనియర్ డాక్టర్స్కి ఏవైతే ఉందో ఆల్రెడీ 15% వాళ్ళకు శాలరీ వాళ్ళ స్టైపెండ్ హైక్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్రెడీ జియో కూడా ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా మా దగ్గర సీనియర్ రెసిడెంట్స్ అని ఉంటారు, వాళ్ళు ఒక 1500 మంది దాకా ఉంటారు. వీళ్ళు కోవిడ్ దాంట్లో సేవలు చేస్తున్నారు, ప్లస్ మా దగ్గర కొన్ని రెగ్యులర్ కూడా అపాయింట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. వీళ్ళందరూ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన మనకి ఇప్పుడు వాళ్ళకు మనము ప్రస్తుతం ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేదు, మనం 70,000 పర్ మంత్ ఇస్తున్నాం. అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళకు కూడా ఒక సింపథెటిక్ యాడ్తోని సార్ వీళ్ళు కూడా కోవిడ్ దాంట్లో పనిచేస్తున్నారు కదా, వాళ్ళకు కూడా కొద్దిగా పెంచితే బాగుంటుందని వాళ్ళకు కూడా 15% వాళ్ళది రెన్యూమినేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా పెంచడానికి అంగీకరించారు. ఇది దీంతో ప్రతి క్యాండిడేట్కి ఆల్మోస్ట్ 10,500 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వస్తాయి. అదే కాకుండా మన రాష్ట్రానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 21 crores per annum దీని భారం ఉంటుంది. అయినా కానీ వీళ్లకు ఆ బెనిఫిట్ ఇవ్వాలన్న ఆలోచనతోని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంతకుముందే మాకు మీటింగ్లో అది కన్ఫర్మ్ చేశారు. అది వాళ్ళకు కూడా కన్వే చేయమన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు వస్తే మేము మాట్లాడతాం కూడా. సో ఇది మీకు మీడియా 1500 మంది ఉంటారండి. కోవిడ్ కోసం మనం తీసుకున్న వాళ్ళు 1100 మంది ఉంటారు. తర్వాత మేము రెగ్యులర్గా కూడా మా దగ్గర ఎస్ఆర్లను మేము అపాయింట్ చేస్తాము. వాళ్ళు ఒక మొత్తం కలిసి అంటే ఇంట్లో కూడా 1100-1100లలో కొందరు తక్కువ ఉంటారు. టోటల్ కలిపి 1500 to 1600 దాకా ఉంటారు వాళ్ళు. సో మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ మెయిన్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్రెడీ అడ్రస్ చేయడం జరిగింది. యాజ్ ఫార్ యాజ్ వాళ్ళు ఇంకొక డిమాండ్ ఏదైతే నిజామ్స్లో ట్రీట్మెంట్ అన్నారు, అది రెగ్యులర్ అందరికీ నిజామ్స్లో ఎవరైతే సీరియస్ ఉంటున్నారో అందరికీ మనం ఇస్తున్నాము. అయితే సింపతికి ఇస్తున్నాము, వేరే వాళ్ళకు కూడా మనం అక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అందులో ఎటువంటి అలా డౌట్ పెట్టుకునే అవసరం లేదు. అదే కాకుండా మన ప్రతి హాస్పిటల్లో కూడా మనం సపరేట్ కొన్ని ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాము. ఎవరికి కూడా హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్కి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి కానివ్వండి, అలానే మన వేరే మీడియా మిత్రులు కానివ్వండి, ఎవరు వచ్చినా కానీ మనము కొన్ని ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాము. అందులో వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాం. ఎటువంటి మందులే కానివ్వండి, లేటెస్ట్ మందులు ఇంక్లూడింగ్ టోసిలోజుమాబ్ ఇటువంటివి కూడా ఎన్నడూ కూడా మనకు షార్ట్ సప్లై లేవు. అందరికి కూడా మనం అవసరం ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాము. సో వాళ్ళు ఇటువంటి దాని గురించి కూడా ఎటువంటి అపోహలు పెట్టుకునే అవసరం లేదు. సో ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వాళ్ళతో చెప్పమన్నది ఏంటంటే, మీరు ఈ పర్టికులర్ టైంలో ఇది కోవిడ్ టైము, ఎందరో మంది పేషెంట్లు 1000 మంది పేషెంట్స్ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు, వాళ్ళకి మన సేవలు అవసరం ఉన్నాయి. అందుకోసం మీరు అందరూ ఇమీడియట్లీ రేపటి నుంచి విధిలో జాయిన్ కావాలన్నది వాళ్ళకు కన్వే చేయమని చెప్పారు. అది నేను మీ మీడియా పరంగా నేను వాళ్ళకు కన్వే చేస్తున్నాను. వాళ్ళు వస్తే కూడా మాట్లాడతాం మేము. సో దీస్ ఆర్ ద డెవలప్మెంట్స్ టుడే. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के चलते उनके लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि वो अपनी हड़ताल को खत्म कर दें। के.टी. रामाराव ने कहा कि हुकूमत उनके मुतालबात पर गौर कर रही है। वाज़ेह रहे कि रियासत के जूनियर डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात को मनवाने के लिए चारशंबे से हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने धमकी दी कि अगर हुकूमत उनके मुतालबात को फौरी तस्लीम न करे तो वो इमरजेंसी खदमात का भी बैकाट शुरू कर देंगे। Stipends etc. Have been enhanced by 15%. If there are other issues, I request them, we request them humbly, that this is not the time to go on a strike, because when the entire humanity is going through a crisis, there are other ways to resolve issues if there are any. Recently we have acceded to some of their demands and requests. I'm sure government will have, we will discuss with them. We will discuss with them with an open mind. So my request to them, particularly to the junior doctors who are on strike, is this is not the time, to be basically striking or kind of
reneging from duties. In fact, served notices already to several hospitals. We will clamp down on some more, not to worry. But yes, the exploitation is happening. We are not, we are aware of it for sure. We have already served notices to some. I'll request Health Secretary also to serve notices to others who are exploiting, who are certainly not helping in the current pandemic. We'll certainly serve notices, and if needed, we'll take severe action. Recently, their stipends, etc., have been enhanced by 15%. If there are other issues, I request them. We request them humbly. That this is not the time to go on a strike, because when the entire humanity is going through a crisis, there are other ways to resolve issues if there are any. Recently, we have acceded to some of their demands and requests. I'm sure government will have, we will discuss with them. We will discuss with them with an open mind. So my request to them, particularly to the junior doctors who are on strike, is this is not the time, to be basically striking or reneging from duties. In fact, served notices already to several hospitals. We will clamp down on some more, not to worry. But yes, the exploitation is happening. We are aware of it for sure. We have already served notices to some. I'll request Health Secretary also to serve notices to others who are exploiting, who are certainly not helping in the current pandemic. We'll certainly serve notices, and if needed, we'll take severe action. रियासती काबीना का अहम इजलास इतवार 30 मई को दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में मुनक्किद होगा। इजलास में कोरोना की सूरत हाल और रियासत में नाफिज लॉकडाउन के बशमूल कई अहम उमूर पर गौर व किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि शहर में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन का एहतराम करें और घरों में ही रहें। कमिश्नर पुलिस मोजमजंग मार्केट के पास कोरोना वायरस से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी के एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने यही पैगाम ट्विटर के जरिए भी जारी किया है। ज़्यादा मेजर चेक पोस्ट और 35 के लगभग माइनर चेक पॉइंट 24 आवर्स सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन में पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमारे सभी ऑफिसर्स 24 आवर्स ड्यूटी में लगे हुए हैं। इसी ड्यूटी के दौरान अभी एक बहुत ट्रैजिक इंफॉर्मेशन भी मिला। नील चौक पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ऑफिसर वेणु बाबू, उनका रोड एक्सीडेंट 2 दिन पहले हुआ था। आज हॉस्पिटल में अभी कुछ लम्हे पहले उनका डेथ हुआ। ये बहुत दुख की बात है, बहुत ट्रेजेडी की बात है। और ख़ास करके वो एक्सीडेंट उनका उस दिन हुआ जिस दिन उनका मैरिज एनिवर्सरी था। मैं इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि पूरे हमारे डिपार्टमेंट के लोग सभी 14,000 एंड अबव कांस्टेबल ऑफिसर्स आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए 24 आवर्स रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं। उसके दौरान कुछ घटनाएं भी हो रही हैं, इंजरी भी हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट भी हुए हैं कुछ। तो आपकी तरफ भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। खास करके जो 1% लोग जो लॉकडाउन के गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहे हैं, मैं उनको अपील करता हूं कि जब हैदराबाद शहर के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग लॉकडाउन को रिस्पेक्टफुली मान रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो ये 1% जो 2,000-4,000 लोग हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अभी कल के इंफॉर्मेशन के मुताबिक लगभग 6,000 से ज़्यादा केस हम लोगों ने लॉकडाउन वायलेशन का बुक किया। 5,000 के लगभग व्हीकल सीज किए। मैं उन लोगों को अपील कर रहा हूँ कि आपके कारण ये कोरोना का वायरस कंप्लीट नहीं ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप लोग लापरवाही से बाहर निकल रहे हैं और वायरस को एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद कर रहे हैं। तो आपसे एक बार फिर मैं अपील करता हूँ, लॉकडाउन को बिल्कुल स्ट्रिक्टली लीजिए और घर के अंदर रहिए। थैंक यू। जेएसएमसी के हुक्काम ने काली कमान के पास गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करते हुए उसकी तज़यीन नौ का काम शुरू कर दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि हुकूमत तारीखी अहमियत की इमारतों और कमानों की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए कई काम अंजाम दे रही है। वाज़ेह है कि चार मीनार के करीब में काली कमान के अलावा 3 और 4 कमान, मछली कमान और कमान शेर बातिल हैं, जिन्हें चार मीनार का बाबुल दाखिला समझा जाता है।
शहर के आईटी हब कहलाने वाले इलाके माधवपुर और गच्चीबौली में पेट्रोलिंग के लिए पुलिस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर इस्तेमाल कर रही है। गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक नारे को आम करते हुए ये स्कूटर लॉन्च की गई है और एक कंपनी ने पुलिस को हथिया के तौर पर पेश की है। माधवपुर के इंस्पेक्टर पी रविंद्र प्रसाद ने बताया कि ये उनके लिए मुनफरिद तजुर्बा है। वो 2 सब इंस्पेक्टर्स और एक खातून सब इंस्पेक्टर के साथ ये गाड़ियां इस्तेमाल करते हुए अपने इलाके में गश्त कर रहे हैं। लंगरौस पुलिस ने लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक ऐसे शख्स की गाड़ी रोक दी जिसने खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो का अहदेदार बताया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने पिलर नंबर 104 के चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक काले रंग की स्कॉर्पियो को रोका, जिस पर गाड़ी में सवार शख्स ने पुलिस पर धौंस जमाने की कोशिश की और बताया कि वो एंटी करप्शन ब्यूरो का अहदेदार है। इंस्पेक्टर के श्रीनिवास ने शुबा जाहिर करते हुए उससे पूछताछ शुरू कर दी और उसकी शिनाख्ती कार्ड तलब किया, जिस पर मालूम हुआ कि वो फर्जी एंटी करप्शन इदारे का अहदेदार है। उसके पास से इंसानी हुकूक कमीशन के फर्जी शिनाख्ती कार्ड भी बरामद हुए, जिनका कोई दस्तूरी या कानूनी अहमियत नहीं है। पुलिस ने उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया और मजीद तहकीकात के लिए पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। यहाँ ये बताते चलें कि शहर में एक अरसे से फर्जी एंटी करप्शन इदारों और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के इदारों के नाम से अपने गाड़ियों पर लेबल लगाते हुए घूमते रहे हैं और ये पुलिस के लिए भी सर का दर्द बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस शख्स के खिलाफ पुलिस क्या करती है। गाड़ी का चाबी दो। नहीं सुनता मैं क्या है? अभी मास्क लगाओ। एसीबी है तो सर मैं प्रेस से हूं सर, मगर व्हाट इज इट? और डुप्लीकेट कार्ड कर डुप्लीकेट कार्ड। हां बोलो। गाइड का मेरा एक्सपायर हुआ तो उसका कार्ड तुम्हारा डैड का है। अच्छी बात है। गाड़ी का चाबी दो। 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 गाड़ी का चाबी दो पहले। अब गाड़ी का चाबी दीजिए। गाड़ी की चाबी दो। और कार्ड बताइए क्या है? बताओ। और कार्ड बताओ। क्या है? बताओ बताओ पूरा बताओ। नहीं है सर, पूरा बताओ। सबको डरा दे तुम पब्लिक को। नहीं सर, डराने की बात ही नहीं है। मैं खाली मैं क्या बोला मैं एसीबी के बोले तुम क्या बोले? तो एसीबी के बोले तुम? लाइसेंस है सर मेरा, गाड़ी का है सर, कुछ भी नहीं है सर। मैं सब पब्लिक को डरा रहे आप? नहीं डरा रहा हूँ सर, मैं कहीं को डराऊंगा मैं? कुछ भी नहीं है सर, कहीं को डराऊंगा मैं? क्या है बताओ, पूरा बताओ। कुछ भी नहीं है सर, ये बेल बाइज के हैं। तो आप ये पूरे ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर हो नहीं क्या? सर, आपका आप डुप्लीकेट करना है? मैं लगा डुप्लीकेट नहीं है सर, लगा? निकाल कुछ भी नहीं है। देखो कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। डैड की फोटो है ये मेरी। डैड की फोटो लगा के तुम फिर रहे? नहीं सर, वो हाँ डैड की फोटो है। डैड की फोटो है। हाँ डैड की फोटो लगा के क्या क्या है देखो जी पूरा। कुछ भी नहीं है सर, और कुछ भी नहीं है। पूरा खोलो देखो, चेक करो। हाँ मैं तुम्हारे पर केस करता हूँ, दे दो। गाड़ी बाजू लगा देखो, चाबी लगा। तुम्हारे पास तुमको दे दो। चलो लगा जी। अरे तुम हटो जी। GMR हैदराबाद एयर कार्गो ने 21 मई से अब तक 11,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की मुंतकली अमल में लाया है। ये कंसंट्रेटर्स शेड्यूल फ्लाइट्स और खुसूसी तैयारों के जरिए लाए गए थे। कार्गो ने कोविड-19 रिलीफ से निपटने के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी है। 21 मई को रूसी दवा स्पुतनिक के 2 शिपमेंट रूस से यहाँ पहुंचे। ये शिपमेंट 1.5 लाख डोज पर मुश्तमिल था। लॉकडाउन के निफाज पर सख्ती से अमल दरामद के दौरान पुलिस हुमायूं नगर ने रैतो बाजार मेहदीपट्टनम के पास
गाड़ियों की बड़े पैमाने पर चेकिंग की मुहिम चलाई। ऐसे वक्त जबकि लोग लॉकडाउन की मुद्दत के खत्म पर घरों को वापस होने की तगोदू में लगे थे, पुलिस उन्हें रोक रोक कर अपने जुल्म का निशाना बना रही थी। किशनबाग के मजलिसी कारपोरेटर हुसैनी पाशा ने लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों के घरों को जाकर खाने के पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कारकुन भी उनके हमरा थे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल भी उन्होंने ऐसी खिदमत अंजाम दी थी। मीर चौक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 40 साल पुलिस कांस्टेबल वीनू बाबू अमीरपेट के करीब ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गया था। एक खानगी हॉस्पिटल में जख्मों से वो जानबज न हो सका। बताया जाता है कि ये हादसा 2 दिन कबल पेश आया था। पुलिस पंजागुट्टा मसरूफ़ तहकीकात है। मौके में बरक़ी की लापरवाही की वजह से आगापुरा पुल के पास 30 से 40 मकानात में टीवी, फ्रिज, एसी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि वोल्टेज में अचानक इजाफा हो गया, जिसके सबब ये वाक़या पेश आया। मल्लेपल्ली के कॉरपोरेटर जफर खान और विजयनगर के साबिक़ कॉरपोरेटर वसीम ने इत्तला मिलने पर वहां पहुंचे और मकामी लोगों से बातचीत करते हुए मौके में बरक़ी से सिलसिले में नुमाइंदगी की। उन्होंने इस इलाके में बरक़ी ट्रांसफार्मर की तब्दीली का भी मुतालबा किया। आज सुबह तकरीबन 10 बजे 10:30 बजे जो है 10:30 बजे के टाइम पे जो है हर घर पे जो है लाइट का फ्लक्चुएशंस ऐसा हुआ, हाई वोल्टेज होने से जो है हर घर में एसी, फ्रिज, एलईडी, टीवी, कई जगह जो है मोटर जल गए, लाइटा, ट्यूबा, हर चीज़ जल गए। जब आप डिपार्टमेंट वालों को कॉल करें तो डिपार्टमेंट वालों का कहना ये है कि जो है ना ये ट्रांसफार्मर जो देख रहे हैं आप, ये ट्रांसफार्मर पे हाई वोल्टेज होने की तरफ से जो है ना ये नुकसान हुआ। आप ये ट्रांसफार्मर से जितनी भी सप्लाई जाती एरिया, जितना भी एरिया कवर होता, हर घर में किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ डैमेज हुआ सो है। पहले जो है लॉकडाउन चल रहा, लोगों के जो है ना कारोबार नहीं चल रहे, लोगों के जो है नौकरियां नहीं चल रहे, घर वाले जो है कैसा की जो है गुजारा कर ले रहे, ऊपर से जो है मजीद ये जो है हज़ारों रुपए का नुकसान, कैसा ये चीज़ जो है बर्दाश्त करेंगी। तो जो है हम यही हिसाब से यही मुतालबा करते कि आपके हायर अथॉरिटीज़ को बोल के जो है ना आप कुछ तो भी कंपनसेशन दिलाइए। शुक्रिया। मंगलहाट में गिरा झाड़, कोई जानी नुकसान नहीं। हैदराबाद के इलाके मंगलहाट में महालक्ष्मी टिफिन सेंटर के करीब एक बड़ा दरख्त गिर गया। शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर वहां पार्क किए गए ऑटो रिक्शा और एक एक्टिवा मोटरसाइकिल का नुकसान हुआ है। मंगलहाट पुलिस ने फौरन जीएचएमसी की डीआरएफ टीम को इस हादसे की इत्तला दी। डीआरएफ टीम ने आकर झाड़ को काट के रोड से हटा दिया। शहर में ऐसे कई झाड़ हैं जो कदीम होने से या टेढ़े उगने से कभी भी गिर सकते हैं। जीएचएमसी को चाहिए कि बारिश से पहले वो ऐसे झाड़ों को निकाल दे, क्योंकि अगर वो झाड़ किसी इंसान पर गिरते हैं तो उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। सोशल मीडिया को भैंसा डीएसपी की वार्निंग। सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्मल के भैंसे के डीएसपी किरण प्रभाकर खरे का बयान, आइए सुनते हैं। नमस्कार सभी भैंसा के लोगों को सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लास्ट के 3 महीनों में उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के एक भैंसा में शांति का माहौल बनाया। जब भी भैंसा में किसी भी तरह का दंगे फसाद होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो रहता है सोशल मीडिया का मैसेज। सभी लोगों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस पे किसी भी तरह की गलत इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ या साथ में जो भैंसा में शांति को खराब करने वाली चीजें हैं जैसे कि कम्युनल मैसेजेस हो, उसको ना फैलाए। यदि कोई ऐसे तरह के मैसेज फैलाता है इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे, तो उस पे पुलिस की तरफ से एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा और साथ में ही उस पर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके उसको अरेस्ट किया जाएगा। जो भी व्हाट्सएप पे किसी भी तरह का यदि मैसेज भेजा जाता है तो ऐसे मैसेज भेजने वाले को और साथ में ही उस व्हाट्सएप के एडमिन को, दोनों पे भी हम केस रजिस्टर करेंगे। उस व्हाट्सएप एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे कोई भी मैसेज आता है तो पुलिस को तुरंत बताए और साथ में ही उस व्हाट्सएप के ग्रुप की सेटिंग चेंज करके ओनली एडमिन कैन सेंड द मैसेज
ये सेटिंग कंप्लीट करें। लेकिन इस पुलिस कार्रवाई से भी सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है इस भैंसा के लोगों की जो यहाँ पे सालों से रह रहे हैं। हमें सभी को एक साथ आके उस 1% ट्रबल मॉन्गर को हमें रोकना है। जो भी लोग इस भैंसा के दुश्मन हैं, इस भैंसा के शांति के हमेशा दुश्मनी करते आ रहे हैं, उन लोगों से हमें मुकाबला करना है। और इसके लिए आप पुलिस को कोऑपरेशन करें। यदि कोई भी ऐसी तरह की इंफॉर्मेशन भेजता है तो पुलिस को, टाउन सीआई को इंफॉर्मेशन दे। आप डायल 100 पे कॉल कर सकते हो या मुझे सीधा कॉल कर सकते हो। लेकिन भैंसा में इसके आगे किसी भी तरह का फसाद ना हो, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हुए एक एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम काम करें। धन्यवाद। भवानीनगर पुलिस स्टेशन के इलाके मोहम्मद नगर में 2 सांप नजर आने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल। तफसीलात के मुताबिक मोहल्ले के एक नौजवान ने सांपों को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जिन्हें जू के हुक्काम के हवाले कर दिया। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात मुकामी मोहम्मद सोहेल की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सोहेल है। यहाँ अहमद नगर की बस्ती है। यहाँ पर जो सो सांपा वगैरह निकल रहे हैं। हर 4-4 दिन को सांप निकलते रहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। और जो सो आप लोग जो सो थोड़ा सा स्पेशल टीम जो सांप पकड़ने वाली है लोग को इधर भेजिए, क्योंकि बहुत ही जो सो तकलीफ हो रही है। इतने बड़े बड़े सांप है, अगर बच्चों को नुकसान वगैरह हुआ तो उसके लिए जो सो वो है। अब तो जो सो लॉकडाउन वगैरह होने की वजह से बच्चे जो सो घरों के पास ही खेल रहे कर रहे। ज़रा आप जो सो वो करिए आप। और दूसरा हम लोग सईद अली साहब SI भवानी नगर को जो सो हम इन्फॉर्म करें और उसके उससे आप लोग जो सो ज़रा कोऑपरेट कीजिए। बस्ती में बहुत ही बस्ती 2 सांप है, आप लोग देख सकते हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने असम्बली हल्के नामपल्ली के इलाके जात भोईगड़ा कमान और सीताराम बाग में प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा जीवन ज्योति, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा और सुकन्या समृद्धि स्कीमों के पासबुक गरीब लोगों में तकसीम किए। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत चाहती है कि दिसंबर तक हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को कोविड-19 के टीके दे दिए जाएं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू करदा इस पॉलिसी में कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि तिबी मौत और हादसे में मरने वालों को इंश्योरेंस मिला करेगा। डायरेक्टर महकमे सेहत श्रीनिवास राव ने दावा किया कि जून के खत्म तक रियासत में कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अब तक जुमला 1,47,00,000 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं और टेस्ट के मराकज को बढ़ाकर 1200 कर दिया गया है। 7,75,000 अफराद कोविड-19 के टीके ले चुके हैं। श्रीनिवास राव ने बताया कि हुकूमत सहाफियों को भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स मानती है। चुनाचे सहाफियों और उनके अरकान खानदान के लिए 28 मई से टीके अंदाजे की खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। कोविड-19 खवायद की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए पीर की रात पुराने शहर के इलाके कामाटिपुरे में एक IPS ऑफिसर के फर्जंद की शादी की तकरीब के मामले की सिटी पुलिस छानबीन कर रही है। बताया जाता है कि सवेरा फंक्शन हॉल में मुनक़िदा तकरीब में रियासत के आला सरकारी और पुलिस अहदेदारों ने शिरकत की थी। साउथ जोन की पूरी पुलिस फोर्स को बंदोबस्त के काम में झोंक दिया गया था। पुलिस ने हालांकि बताया था कि शादी की तकरीब में सिर्फ 40 अफराद को ही शिरकत की इजाजत है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल ने कहा कि पुलिस ये पता चलाने की कोशिश कर रही है कि आया इस तकरीब में कोविड-19 की कोई खिलाफ वर्जी हुई है या नहीं। सोशल मीडिया पर इस तकरीब का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाया गया कि शादी के मौके पर पटाखे भी छोड़े गए और पार्किंग में गाड़ियों की कतारें लगी थी। डायरेक्टर जनरल पुलिस अहमद रेड्डी ने मीडिया की जानिब से इस बारे में किए गए सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और खामोशी के साथ चले गए। दूसरी तरफ बीजेपी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने कोविड-19 की खिलाफ वर्जी के वाक़े पर सिटी पुलिस की खामोशी के बारे में सवाल उठाए। उन्होंने शादी की तकरीब मुनक़िद करने वालों पर डिजास्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। रसाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में रहने वाले सीनियर सिटीजन्स और हामिला खवातीन के लिए फ्री कैब सर्विस शुरू की गई है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि सिर्फ दवाखानों को आने और जाने के लिए ये सर्विस दस्तियाब रहेगी। నమస్తే అండి, నా పేరు జ్యోత్స్న, నా కొరంలా విలేజ్. యాక్చువల్గా మాకు ఎమర్జెన్సీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, క్యాబ్ సర్వీస్ కోసం అడిగినందుకు మహీంద్రా క్యాబ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మాకు హెల్ప్ చేశారు.
ఈ లాక్డౌన్ టైంలో థ్యాంక్ యూ హెల్ప్ చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది. ఇలాగే అందరికీ హెల్ప్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. तूफान यास उड़ीसा के धर्मा पोर्ट पर सुबह 9 बजे के करीब टकरा गया। तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से कई साहिली टाउन्स और मुआवजात में जबरदस्त तबाही हुई। रिलीफ कमिश्नर केपी जीना ने बताया कि बालासोर और जिले भद्रक में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखा गया। उन्होंने बताया कि हुक्काम ने पहले ही नशेबी इलाकों से 5,80,000 अफराद का तखलिया करवाया और उन्हें महफूज मकामात को मुंतकिल किया। अब यह तूफान मगरबी बंगाल का रुख कर चुका है। महकमा मौसमियात ने बताया था कि तूफानी हवाएं फी घंटा 155 और 165 किलोमीटर के दरमियान चलेंगी, लेकिन इनमें 12 से 15 किलोमीटर की कमी देखी गई। मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना और ईस्ट मदनापुर में नदियों और तालाबों में पानी की सतह में जबरदस्त इजाफा हो गया। उड़ीसा और मगरबी बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ कल रात से बारिश शुरू हो चुकी थी। इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड के 17 कॉलम्स राहत और बचाव के काम के लिए मुतहरिक हो गए। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए चीफ होंगे। मरकजी वजारत पसुंडल ने 1985 बैच से ताल्लुक रखने वाले IPS ओहदेदार के तकर्रुर की तौसीक कर दी है। जायसवाल महाराष्ट्र के DGP भी रह चुके हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट NV रमना और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर अधीर रंजन चौधरी पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी CBI के चीफ का इंतखाब करती है। अधीर रंजन चौधरी ने CBI के सरबराह के इंतखाब के मामले में इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ेकार पर शदीद इतराज़ किया। सोशल मीडिया व्हाट्सएप ने मरकजी हुकूमत के नए क़वानीन को चैलेंज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है और बताया कि इससे आवाम की हक़ राजदारी मुतासिर होती है। हुकूमत और सोशल मीडिया के इदारों ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक के दरमियान कई मामलात को लेकर टकराव चल रहा है और हद तो यह है कि ऐसे वक्त में पुलिस ने टूल किट तनाज़े के दौरान ट्विटर के दफ्तर पर धावा कर दिया। मुल्क में कोरोना वायरस के केसों में बज़ाहिर कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2,08,921 नए केसेस दर्ज हुए। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 4,157 अमवात हुई हैं। अमवात के एतबार से हिंदुस्तान, अमेरिका और ब्राज़ील के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। सिर्फ 15 दिन में 60,000 अफराद इस मर्ज की वजह से फौत हुए। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.